morning students. In this lecture we are going to discuss about the introduction to hemodynamic and electrophysiology of the heart. Means the hemodynamic and the electrophysiology of the heart. So what is hemodynamic? Hemodynamic is actually the study of the blood flow is called the hemodynamic. मतलब कि जैसे जो हार्ट से जो ब्लड पंप होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन और फिर से हार्ट में आके लंग्स में जाना, तो द मूवमेंट ऑफ द blood in the arteries or the veins or the capillaries is actually known as the hemodynamic. इसमें हम लोग ब्लड के मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं. हम जानते हैं कि जो भी प्योर ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से अपने लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर ये एओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है. तो ये कैपिलरीज के थ्रू जो सेल्स रहते हैं वहाँ से ऑक्सीजन को गेन करते हैं और रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, वो एनर्जी रिलीज करते हैं. तो सेल को ऑक्सीजन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है, ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं, ऑक्सीजन से एनर्जी का जनरेशन होता है और CO2 एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है. तो उस CO2 को कैरी कौन करता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में लेते हैं और इसको राइट एट्रियम में लेके जाते हैं, वहाँ से वेंट्रिकल के थ्रू फिर लंग्स में चला जाता है. और लंग्स में क्या होता है? लंग्स से जब हम वहाँ पर भी कैपिलरीज के थ्रू जब वो पार्शियल प्रेशर फेनोमेना के थ्रू ये कहाँ जाते हैं? एल्वियोलाई में जाते हैं. एल्वियोलाई से क्या होता है? फिर ये जब हम एयर एक्सहेल करते हैं तो वहाँ से क्या होता है? ये ऑक्सीजन, और इनहेल करते हैं तो फिर ऑक्सीजन आता है और ये क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड से फिर ऑक्सीजनेटेड होकर फिर अपने लेफ्ट एट्रियम और फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है. तो ये ब्लड के पूरे फ्लो को हम क्या बोलते हैं? हीमोडायनेमिक बोलते हैं. फिर द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट. इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मीन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट. मतलब कि इसमें हम जितने भी हार्ट में के सेल्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है, उसके बारे में हम लोग उसमें स्टडी करते हैं. तो वी नो दैट द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय द हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम. जो भी हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो उसको कंट्रोल करता है. लेट्स अंडरस्टैंड इट. Actually what happened, the pumping action of the heart is controlled by the heart electrical system. The heart contains the specialized cells that can generate own electrical impulses and send them to the cardiac muscles, causing it to contract. The cardiac conducting system is mainly made up of 5 elements. Five elements से mainly बना रहता है. इसमें कौन कौन से होता है? The sinoatrial node, SA node for short, atrioventricular node, AV node for short, bundle of His, and the bundle branches, and the last one is the Purkinje fiber. You can see in the picture. Actually the normal heart rate begins when the electrical signals are sent from the SA node. Okay, the signal from the SA node cause atria to contract, pushing blood through the open valves into the ventricles. You can see in the picture. And in the typical electrocardiogram, this is represented as the P wave. You can see on the right side of the picture, the P wave is represented. Now the next electrical system arrives at the AV node and is briefly delayed so that the contracting atria have enough time to pump all the blood into the ventricles, and this is represented the line between the P and Q waves. At this point the signal travels through the bundle of His and bundle of branches, and this is represented as the Q wave. And finally signal travels through the Purkinje fibers. You can see that it travels into the Purkinje fiber and causes the ventricles to contract and thus pump blood from the right ventricle to the lungs and the left ventricle into the all parts of the body. This is represented as the R and S wave. The total is known as the QRS complex, and the last T wave represents the recovery of the ventricles. You can see that the T wave represents the recovery of the ventricles. Now the cardiac cells can be divided into two groups, contractile cell and the conducting cells. We know that the contracting cells are responsible for the force of contraction, pumping action of the heart, and the conducting cells are responsible for the automaticity of the heart. That means they generate the electrical impulse. And the conducting cells, actually SA node, AV node, they all are known as the conductor because they can generate the electrical impulse of their own. They have the property of automaticity. मतलब ये खुद से generate कर सकते हैं एक्शन पोटेंशियल, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग सेल. उसमें SA नोड होता है, उसको हम लोग पेस मेकर बोलते हैं. वैसे जनरेट तो AV नोड भी करता है, लेकिन SA नोड जो होता है हाई फ्रिक्वेंसी से 70 बीट्स पर मिनट के हिसाब से करता है, इसीलिए इसको हम पेस मेकर बोलते हैं. और बाकी AV नोड जो भी रहते हैं उन लोग को हम लैटेंट पेस मेकर बोलते हैं.
तो इसका काम क्या रहता है कंडक्टिंग सेल्स का, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करके ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स तक भेजता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स क्या करते हैं, ये यहाँ तक जब इंपल्स आता है तो ये एक्साइट होते हैं, एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी होता है इनके अंदर, और ये क्या करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये क्या करती है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। यानी कंडक्टिंग सेल, दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं अपने हार्ट में। कंडक्टिंग सेल्स क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करके कंडक्ट करके कहाँ ले जाएंगे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल, और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स उनका रिस्पॉन्स लेके क्या करेगा फिर उसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करेगा। द डिफरेंस बिटवीन देम, द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल एंड कंडक्टिंग सेल, वी कैन से दैट द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स आर नॉन ऑटोमेटिक फाइबर्स बिकॉज दे कैन नॉट जनरेट द एन इंपल्स ऑफ देयर ओन। अभी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन कंडक्टिंग सेल्स क्या होता है, ऑटोमेटिक फाइबर्स बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग देयर ओन इंपल्स। नाउ कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स आर द ऑल द कार्डियक मसल सेल्स, एंड द कंडक्टिंग सेल्स कौन कौन से होते हैं, एसए नोड, एवी नोड और हिज प्रोकिंजिस सिस्टम होता है, जो भी स्पेशलाइज जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में। एंड कंट्रैक्टाइल सेल जब एक्टिवेट होते हैं तो इन्वॉल्व्स इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज ए पंपिंग मोशन ऑफ द हार्ट। बट कंडक्टिंग सेल्स गवर्न द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, मतलब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कंट्रैक्टाइल सेल्स के पास स्टेबल फेज 4 होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये नॉन ऑटोमेटिक फाइबर्स बोले जाते हैं, और इनके पास अनस्टेबल फेज 4 होता है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक फाइबर्स। ये अनस्टेबल स्टेबल क्या होता है, ये हम नेक्स्ट में जब इनके मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ेंगे तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। नाउ यू कैन सी द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कार्डियक सेल्स। एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कार्डियक सेल्स, इसमें क्या होता है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का एक्शन पोटेंशियल दिखाया गया है और ये कंडक्टिंग सेल्स का दिखाया गया है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स मतलब एक सेल में जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो उसके मेम्ब्रेन में क्या क्या डिफरेंस होता है, कौन सा आयंस का इन्फ्लक्स होता है, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन कैसे होता है, उसे को हम ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो जो कंट्रैक्टाइल सेल जो नॉन ऑटोमेटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर पहले हम लोग देखते हैं, तो ये दे हैव द स्टेबल फेज 4। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इनके पास स्टेबल फेज 4 होता है। क्यों, देखो आप यहाँ पर ये -90 मिली वोल्ट पर ये स्टेबल रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम और कैल्शियम चैनल क्लोज रहते हैं, और जो पोटेशियम रेक्टिफाइड चैनल्स रहते हैं वो ओपन रहते हैं, और क्या करते हैं ये कंटिन्यूसली पोटेशियम चैनल को पॉजिटिव आयंस को आउटफ्लक्स करते हैं, जिसकी वजह से ये -90 मिली वोल्ट पे ये स्टेबल रहता है। बट व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स देन सडनली दिस सोडियम ions rapid sodium channel opens and there is the influx of the sodium ion which causes a rapid depolarization of the cell, जिसकी वजह से रैपिड डीपोलराइजेशन होता है, जिसको हम फेज 0 से बोलते हैं। ये फेज 0 क्यों आया, ये सोडियम आयंस के इन्फ्लक्स की वजह से, वो बहुत जल्दी जल्दी हुआ, इसी वजह से ये अचानक से ये +30 मिली वोल्ट तक चला गया, अंदर में इन्फ्लक्स में सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हुआ इसकी वजह से। फिर क्या होता है, फिर देर इज ओपनिंग ऑफ द अगेन द के प्लस चैनल, सोडियम पोटेशियम चैनल्स, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल को 0 मिली वोल्ट तक धीरे धीरे ला देता है। फिर क्या होता है, देर इज इलेक्ट्रिकल बैलेंस बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम एंड द पोटेशियम चैनल। कैल्शियम क्या करता है, इसमें से आयंस को अंदर लाता है, पोटेशियम इसको बाहर। देर इज इलेक्ट्रिकल बैलेंस, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ये फेज 2 को डिनोट करता है। फिर फेज 3 में क्या होता है कि कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाता है और पोटेशियम चैनल फिर से क्या करता है, इसको पोटेशियम चैनल को बाहर करता है, जिसकी वजह से फिर से ये -90 में। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये स्टेबल फेज 4 है, जिसकी वजह से अब कोई जब तक कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा नहीं तब तक यहाँ पर डिपोलराइजेशन नहीं होगा, यानी एकदम से स्टेबल रहेगा ये। इसीलिए इसमें नॉन ऑटोमेटिक फाइबर होती है, क्योंकि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन आप देखो ये कार्डियक सेल्स जो पेसमेकर सेल्स होते हैं, ऑटोमेटिक सेल्स होते हैं, उनके अंदर देखो आप ये जो फेज 4 होता है ये कैसा होता है, ये अनस्टेबल है। ये खुद से, जैसे आप देखो यहाँ पर ये रिपोलराइजेशन के बाद ये खुद से ही कहाँ चले जाते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में चले जाते हैं, और ये फिर से क्या करते हैं, एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देते हैं। इसीलिए इनका फेज 4 जो होता है अनस्टेबल होता है, एंड देयरफॉर दे कैन कॉज द ऑटोमेटिसिटी, ठीक है। तो देखिए ये फेज 4 क्यों होता है, स्लो इनवर्ट सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होते रहता है धीरे धीरे, और जैसे ही ये थ्रेशोल्ड पे पहुंचते हैं कि मतलब जहां से एक्शन पोटेंशियल डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है इनका मेनली, तो वहां पर एल टाइप कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से सडनली क्या होता है, कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है, एंड देयर इज डिपोलराइजेशन विच इज नोन एज द फेज 0। फेज 0 के बाद क्या होता है, जब ये पीक पे जाता है +20 मिली वोल्ट तक मेनली जाता है, तो क्या होता है यहाँ पर कैल्शियम चैनल क्या होता है, क्लोज हो जाता है, और फिर से वोल्टेज गेटिंग पोटेशियम चैनल ओपन होता है, और देयर इज ए रिपोलराइजेशन। ये आप फेज 3 से डोनेट करते हैं। अब देखो आप इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसका जो मेम्ब्रेन जो स्टेबल ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना -90 मिली वोल्ट है अबाउट, और इसका कितना है -60 मिली वोल्ट है।
ये आप यहाँ पर देख रहे होगे, और इसका -40 to 45 थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कंट्रैक्टाइल सेल्स एंड द पेसमेकर सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटी arrhythmic drugs which we will discuss it later. Okay. Now, what are the properties of the cardiac cells? We have studied it in the 11th class also, that they have the properties of automaticity, means they can generate the impulse of their own. They have the property of for the impulse generation, automaticity. Conduction means they can conduct the electrical impulse from one cell to another. This property is known as conduction. And excitability, the strength required to excite a cell, which is known as the excitability. It depends upon the threshold potential. Now the refractory period, the time between the two action potential is known as the refractory period. Now the action potential, there are mainly two types of the action potential. जैसे हमने कार्डियक सेल में दो तरह के action potential होते हैं. The first one is fast channel action potential and the second one is the slow channel action potential. Fast channel action potential जो होते हैं वो एट्रिया, वेंट्रिकल और पुर्किंजे फाइबर्स में होते हैं, जो सेल्स होते हैं उनके अंदर होते हैं. स्लो चैनल्स ये मेनली साइनोएट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकल नोड्स में होते हैं. इनका क्या होता है, फास्ट चैनल इनको क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे हैव फास्ट एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन काइनेटिक्स, मतलब ये जल्दी से एक्टिवेट होते हैं और फिर जल्दी से इनएक्टिवेट हो जाते हैं. लेकिन जो स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल होते हैं, दे हैव स्लो एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन काइनेटिक्स. और इनका थ्रेशोल्ड जो होता है वो -60 to -70 मिली वोल्ट होता है, जो अभी हम लोगों ने देखा. और जो स्लो चैनल्स होते हैं, जैसे नोड होता है, पेसमेकर सेल होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, हाई थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, -45 to -55 मिली वोल्ट होता है. ठीक है. और ये कंडक्शन जो होता है इनका फास्ट चैनल एक्शन पोटेंशियल में, ये फास्ट होता है और इनका स्लो कंडक्शन वेलोसिटी होता है. जैसे ये मेनली जो एक्शन पोटेंशियल जो सी नोड और एवी नोड में जनरेट होता है उसको हम स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं. और जो कि और अदर सेल्स में एट्रियल वेंट्रिकल मसल सेल्स हो गए उनमें जो जनरेट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, फास्ट चैनल एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं. नाउ what are the autonomic influences on the cardiac electrophysiology and contractility. मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक हम लोगों ने पढ़ा इस प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीवियस सेमेस्टर में. तो उनका क्या इफेक्ट पड़ता है कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड कंट्रैक्टिलिटी, आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हो. तो ऑटोमेटिसिटी यानी ऐसे नोड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम जानते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक जो रहता है ये क्या करता है नर्वस सिस्टम, ये ब्रैडीकार्डिया करता है, यानी हार्ट रेट को कम करता है, जैसे एसिटाइलकोलिन इसका एग्जांपल. और ये सिंपैथेटिक क्या करता है, इसको टैकीकार्डिया करता है. फिर रिफ्रैक्टिव पीरियड, मतलब कंडक्टिंग टिश्यू में ये प्रोलॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग करने का रिफ्रैक्टिव पीरियड जितना प्रोलॉन्ग होगा यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में उतना ही लेट होगा, यानी उतना ही ब्रैडीकार्डिया होगा. लेकिन ये शॉर्टन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है. कंडक्टिविटी ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन में ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. लेकिन ये जो रहता है ये सिंपैथेटिक ये करता है, इसको इनहांस कर देता है. कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम कर देगा. कार्डियक आउटपुट कम करना है हमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम में, लेकिन सिंपैथेटिक में क्या होता है, इंक्रीज करना है, क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हमें इंक्रीज करना है. ठीक है. तो दीज आर दी ऑटोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस ऑन दी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड दी कॉन्ट्रैक्टिलिटी. दिस इज ऑल अबाउट दी कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी. थैंक यू.